Good morning, students. Today we are going to start our last topic of this chapter, and the chapter name is Diversity and Discrimination, and this is our lecture number 4. So let's start. So far, students, we studied about the difference and prejudice. Difference, we studied that people are different in terms of living, eating, speaking, clothing, and various other things. And difference are influenced by the geography and history of the place where we live. Okay, so diversity, then one question was arise there. Okay, diversity is not always celebrated. Why? So now you know that ki people don't feel safe and secure with people who don't look, talk, dress, or think like them. So, and people don't feel safe and secure. You know that people don't feel safe and secure with people who don't look, talk, dress, or think like them. And people also form certain attitude and opinion about the others who are not like them. For example, villagers as ignorant and superstitious, while people in the cities as money-minded, lazy, and cunning. Okay, then we studied about the prejudice, and you know that prejudice, what is the meaning of the prejudice? Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, so we are judging these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak languages other than English. We can be prejudiced about many things, such as about people's religious beliefs and colors of their skin, the reason they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. Okay. Then after that, we studied about the creating stereotypes. So all of us are familiar with the gender differences and stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. Okay, after that, students, we studied about the stereotypes. What is stereotype? Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. And they fit large numbers of people into only one pattern or type. After that, we studied about the inequalities and discrimination. So, what is discrimination? Discrimination means treating a person unfairly, especially on the ground of race, age, or sex. So, how does it happen, students? Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. Then what is inequality? Inequality, the unfair situation in society when some people have more opportunities, money, etc. than other people. For example, like people who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing, or shelter. Okay, so who are treated as both discriminated and unequally? Tribals, some religious groups, or even particular reasons are discriminated against for one or more of these reasons. Then how? So in the caste system, communities or group of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the others. Those who placed themselves at a top of this ladder
leader called themselves upper caste and saw themselves as superior. And the group who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. Okay, then Dalits. Yes, who are Dalits? So Dalit is a term that people belonging to so-called lower caste use to address themselves. Okay, here we studied about the one experience. We studied the one experience of Dr. Bhim Rao Ambedkar, who is the one of the greatest leader of our country. Okay, so today, students, today we will discuss from here कि Dr. Bhimrao Ambedkar 1981 to 1956 1981 to 1956 1891 sorry the Dr. Bhimrao Ambedkar 1891 to 1956 is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. Okay, so I think students you know about it कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन वो क्या थे वो उन्होंने हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहा जाता है फादर बोला जाता है ओके सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज आल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित और वो दलित के बेस्ट नोन लीडर वो माने जाते हैं के बड़े नेता के रूप में वो जाने जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर फाउट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी ओके वो दलित कम्युनिटी के लिए लड़े उनके राइट्स के लिए लड़े एंड ही वाज बोर्न इनटू द महार कास्ट ओके महार कास्ट यू नो दैट महार कास्ट which was considered untouchable जिसको क्या कहा जाता था महार कास्ट को जिसे किस रूप में कंसीडर किया जाता था अनटचेबल सो द महार्स वर पुअर ओन्ड नो लैंड महार कौन होते थे गरीब होते थे पुअर होते थे और उनके पास कोई भी लैंड नहीं होती थी ओन्ड नो लैंड उनके कोई जमीन नहीं होती थी एंड चिल्ड्रन बोर्न टू देम आल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड और उस महार कम्युनिटी में जो बोर्न होते थे बच्चे उन्हें वो वही काम करते थे जो उनके पेरेंट्स करते आ रहे थे जो उनके पेरेंट्स ने काम किया उसी काम को उन्हें भी करना पड़ता था so they lived in spaces outside the main villages and were not allowed to into the village okay so Dr. Ambedkar was the first person Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education जिसने जो ये पहले वो भी इंसान थे जिन्हों इस कम्युनिटी से जिसने की कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की एंड वेंट टू द इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर ठीक है और वो इंग्लैंड गए और वहां पर लॉयर बनने के लिए एंड ही एनकरेज दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज और उन्होंने दलित्स को क्या कहा उनको एनकरेज किया दलित को कि वो अपने बच्चों को भी स्कूल एंड कॉलेज में भेजें He also asked Dalit to take on different kinds of government job in order to move out of caste system और उन्होंने साथ ही साथ दलितों को ये भी उनसे उन्हें कहा कि वो अपने बच्चों को अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जॉब में उनको अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में भेजे ताकि इस कास्ट सिस्टम से बाहर निकला जा सके and he led to many efforts of the Dalit to gain entry into टेम्पल साथ ही साथ उन्होंने दलितों ने जो मंदिरों में एंट्री करने के लिए ना उन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट्स किए कि दलितों को मंदिर में टेम्पल्स में एंट्री मिल जाए सो उसमें में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है सो लेटर इन द लाइफ ही for a religious, he converted to Buddhism in his search for a religion that he treated all member equally. अब क्या हुआ बाद में उन्होंने वो ऐसे एक रिलीजन की खोज में निकले कि जहां पर उन्हें ये लगे कि
उन जिस जिस रिलीजन में सभी को एक इक्वल समझा जाता है। और उन्होंने देखा कि बुद्धिज्म जो है ये वो रिलीजन था जिसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, इसीलिए उन्होंने क्या करा, बाद में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, बुद्धिज्म को, क्योंकि वहां पर सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सबको एक समान समझा जाता है। So Dr. Ambedkar believed that Dalit must fight the caste system and work towards a society based on respect not just for a few but for all persons. अब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनका ये मानना था कि दलित को जो कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए, फाइट करनी चाहिए और ऐसे सोसाइटी बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें कि सभी को, सबकी क्या हो, सबको रिस्पेक्ट मिले, ना कि कुछ ही लोगों को। क्लियर स्टूडेंट्स? देन इमेजिन, yes, imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to other. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you and allow you to drink water from the same source they do. आप सोचिए इस चीज को कि अगर आपके साथ ऐसा बिहेव हो कि आप एक मतलब आके आपके लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, कोई आपको अपने से दूर रखे, ठीक है, दूर रहने को कहे, आपको इंसल्ट करे, आपको वो टच ना करे, ठीक है, आपको जिस सोर्स से वो पानी पी रहा हो वो उससे आपको पानी पीने के लिए मना करे, तो आपको कैसा फील होगा, इमेजिन करो। So this small incident show how a simple task, going from one place to another in a cart, was not available to the children. Even though they could pay the money, all the cart men at the station refused to take children and they acted in a discriminatory manner. अब जैसा हमने पीछे देखा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें कि उनको सिर्फ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए जो एक कार्ट थी, वो कार्ट भी अवेलेबल नहीं हो पाई थी। ओके, कार्ट वाज नॉट अवेलेबल टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, क्यों नहीं हो पाई थी? बिकॉज दे आर बिलोंग टू अ महार महार कम्युनिटी। ओके, एंड इट इज अनटचेबल। सो वहां पर क्या हुआ था, उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया था, डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो इस तरीके से आप सिर्फ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सिर्फ इसलिए मूव नहीं कर पा रहे हो, इसलिए नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आप किस से बिलोंग करते हो, आप अनटचेबल से बिलोंग करते हो, आप आपको वो लो कास्ट का समझते हैं, इसीलिए दैट्स व्हाई सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। क्लियर स्टूडेंट्स? यस, देन स्टूडेंट्स, तो क्लियरली एज दिस स्टोरी शोज, जैसे कि स्टोरी आपको बिल्कुल क्लियरली दिखा रही है कि caste based discrimination is not only the limited to preventing Dalit from undertaking certain economic activities, but it also denies them to respect and dignity given to others. अब ये जो स्टोरी है आपकी, ये स्टोरी से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो कास्ट है, कास्ट पर बेस्ड जो बायस होता है, वो ना केवल दलित को कई तरह की एक्टिविटीज से उनको क्या करता है, कई कई सारी एक्टिविटी करने से डिनाई करता है, वंचित रखता है, बल्कि वो उन्हें रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलती है। कास्ट सिस्टम इस तरीके से, जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो लोगों को एक्टिविटी तो करने ही नहीं देता, साथ ही साथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी भी नहीं मिलती उनको। ओके, सो नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी के लिए क्या करना, स्ट्रगल करना। सो द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम from the British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally.
अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश रूल था जब, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्रीडम पाने के लिए जो स्ट्रगल किया गया था उसमें इक्वालिटी के का जो बिहेवियर था, इक्वालिटी थी, उसके लिए किया गया स्ट्रगल भी उसके अंदर इंक्लूडेड था। इक्वालिटी के लिए भी लोग स्ट्रगल कर रहे थे। ओके, एंड यहाँ पर इसके अंदर दलित्स, women, tribals and peasants fought against the inequalities. वो किसके अगेंस्ट लड़े? इनइक्वालिटी के। एंड दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइफ, जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए थे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की इनइक्वालिटी। सो एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। ठीक है, जैसा हमने पीछे भी देखा कि कई सारे दलित थे जिन्होंने टेम्पल में एंट्री के लिए का अपने आप में मतलब अपने को ऑर्गेनाइज किया और टेम्पल्स में एंट्री पाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किए। एंड वीमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच अ राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड। ऐसे ही विमेन ने की जो डिमांड थी, उन्होंने किस चीज के लिए स्ट्रगल किया कि उन्हें भी मैन की तरह, मेल की तरह उन्हें भी एजुकेशन लेने का राइट मिले। एंड पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, जो पीजेंट्स एंड ट्राइबल है, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स how to release themselves from the grasp of the moneylender। moneylender के एक तो वो चुंगल से छूटना चाहते थे, कौन? peasants and tribals, and the high interest they were charged। और साथ ही साथ जो ये मनी लेंडर, जो ये जमींदार थे, जो उनके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे, वो चार्ज से भी वो क्या करना चाहते थे? अपने आप को आजाद करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? स्ट्रगल किया। So when India became a nation in 1947, जब इंडिया, यू नो दैट बच्चे कि इन 1947 क्या हुआ था? हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। सो our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed। अब 1947 में जब हमारा नेशन, हमारा इंडिया नेशन बना, तो जो हमारे लीडर्स थे वो इस बात से बहुत मतलब पूरी तरीके से उन्हें ये बात पता थी कि किस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी कैसे जो है ना, अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। उन्हें सब पता था कि कैसे लोग जो है उन्होंने क्या किया, वो लोग ने स्ट्रगल किया इसके अगेंस्ट। सो दोस्त who wrote the constitution of India, जिन लीडर्स ने मिलकर हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, so a document that laid out the rules by which the nation would function and were aware of the ways in which discrimination, yes, were aware of the ways in which discrimination had been practices in our society and how people have struggled against this। तो यहाँ पर यस, तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले भी यहाँ पर देखो, जो हमारे ये जो लीडर थे, ठीक है, अभी आपको बताया 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, एक नेशन बना, तो उस टाइम पर हमारे जो लीडर्स थे, उन्हें हमारी सोसाइटी में जिस तरह की इनइक्वालिटी वहां पर थी, उस इनइक्वालिटी के वो बारे में उन्हें पता था और उन्होंने उनके ऊपर अपना विचार भी किया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने लगे, तो जिन भी लीडर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए इंडिया का, तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले जो लीडर्स थे, वो भी इस बात मतलब वो भी इस बात से पूरी तरीके से वो परिचित थे कि हमारी सोसाइटी में कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कैसे बायस होता है, और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरीके से स्ट्रगल किया। So many leaders of these struggles such as, और इनमें से कई सारे लीडर थे जिन्होंने ये स्ट्रगल किए, ऐसे such as डॉक्टर अंबेडकर had also fought for the right of the Dalits। जैसे डॉक्टर अंबेडकर थे, वो भी दलितों के राइट के लिए उन्होंने भी लड़ाई की, स्ट्रगल किए। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India, all the people of India were considered equal। इसीलिए जब उन्होंने हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो उन्होंने उनका जो एक विजन था ना, सेट आउट अ विजन, उन्होंने एक अपना विजन सेट आउट करके रखा है, गोल्स
जो गोल्स थे कि भाई उनको क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालना है, ताकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जहां पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वालिटी रहे, सब एक समान रहे। तो उन्होंने ये सब सोचते हुए बनाया। इसीलिए लीडर ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसे विजन और ऐसा विजन और ऐसे जो गोल्स थे उन्होंने रखे, जिससे इंडिया में सभी लोगों को इक्वल माना जाए। Okay, and this equality of all persons is seen as a key value that unites us all as Indians. So equality को एक उन्होंने एक मतलब कि एक उन्होंने क्या करा, की वैल्यू, ठीक है, एक की वैल्यू की तरह माना गया, जो हम सभी को एक इंडियन के रूप में जोड़ती है। Everyone has equal rights and opportunities. हर किसी के पास इक्वल राइट था, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। एंड अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम। अनटचेबिलिटी को अब एक क्राइम की तरह, ठीक है, उसको एक क्राइम माना जाता था। एंड हैज बीन लीगली अबॉलिश बाय द लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ के अकॉर्डिंग इसको अबॉलिश कर दिया गया अनटचेबिलिटी को। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क। अब लोग पूरी तरीके से फ्री थे, वो कोई भी काम चूज कर सकते थे। दे विश टू डू, जो उनका मन होता था। एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। गवर्नमेंट ने क्या करा, सभी गवर्नमेंट जॉब ओपन कर दी सभी लोगों के लिए। सो इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन also plays responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. तो इस तरीके से इन सब के अलावा हमने कहा कि इन सब के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट के ऊपर डाली कि वो पुअर और जो भी इसमें आते हैं, मतलब कि पुअर और अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज हैं, जितनी भी दूसरी मार्जिनल कम्युनिटी है, उनको इस इक्वालिटी के राइट के जो राइट ऑफ इक्वालिटी है उसके फायदे दिलवाने के लिए वो स्पेशल स्टेप उठाए। क्लियर स्टूडेंट्स? So students, therefore India become a secular country. Therefore इसलिए इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री बना है, where people of different religions and faiths are yes, faiths have the freedom of practice, freedom of to practice and follow their religion without any fear of discrimination. तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर्स थे उन्होंने ये भी कहा है कि डाइवर्सिटी क्या है, जो मतलब जो डाइवर्सिटी है उसकी इज्जत करना, ठीक है। देखो, इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस। जो अलग अलग रिलीजन से आते हैं, वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं और उनके जो विश्वास है, फेथ्स हैं, हैव द फ्रीडम, उनको फ्रीडम दी जाए, ठीक है, वो आजाद हैं, फ्री हैं, कुछ कोई भी अपने रिलीजन को क्या करने के लिए, अपने रिलीजन को के लिए काम करना, अपने रिलीजन को इंजॉय करना, एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के डर के, ठीक है, वो अपने रिलीजन को फॉलो करें। सो दिस इज सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर यूनिटी। और ये जो है ये हमारे यहाँ पर हमारी यूनिटी, ठीक है, एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर यूनिटी, और ये हमारी यूनिटी का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट के रूप में इसको देखा जाता है। एंड दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट अदर। हम सब एक साथ एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। तो दो दीज आइडियल्स आर enshrined in our constitution, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन विचारों पर जोर दिया गया है। And this chapter point out that inequalities exist even today. कहते हैं हालांकि इन सब के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी आइडियल्स के, इन सभी चीजों के ऊपर विचार किया गया है, ठीक है, बट फिर भी ये चैप्टर किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये चैप्टर इनइक्वालिटी के ऊपर। इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इवन टुडे, कि आज भी हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। इक्वालिटी इज द वैल्यू
that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इक्वालिटी वो वैल्यू है जिसके लिए हमें कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहना होगा, ठीक है। एंड जो इंडियंस हैं उनके लिए इक्वालिटी की का वैल्यू एक्चुअल लाइफ का हिस्सा बने, सच्चाई में सच्चाई बने, इसके लिए लोगों को क्या करना होगा, पीपल को लोगों को स्ट्रगल करना होगा। एंड पॉजिटिव एक्शन बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कुछ पॉजिटिव एक्शन लेने होंगे, आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। गवर्नमेंट को भी कोई पॉजिटिव एक्शन लेने होंगे ताकि ये जो इक्वालिटी है इसको रियलिटी में सभी इंडियंस के लिए रियलिटी में इनको बनाया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, so now students this chapter is completed, so that's all for today. Have a good day.